Hi, Hitesh. Thank you so much for joining this conversation, the talk show, which is extreme gratitude. And I know we have been discussing for last few weeks to have this discussion, but finally we are meeting. So thank you once again for joining, and I'm really excited to know so many things about VFX, especially certain movies that I am really passionate about. So I'll be asking questions around that. But yes, again, thank you for joining, Hitesh. Yeah, thank you, and pleasure is mine. I'm very happy to for this podcast, Yeah, and thank you. I'm very happy to tell everything about VFX, what is VFX, and how I'm interested in this, and how I Sure. joined this industry. Yes. So just to start with, Hitesh, if you could talk about yourself, what have you studied and how did you get into this visual effects business? Yeah, actually, I'm very interested in this film industry or in storytelling from the Mm-hmm. beginning in my childhood. Yeah, Okay. I used to write stories or I used to tell stories, Okay. and even in my school times, Mm-hmm. I draw comics, Mm-hmm. just these sketches and draw comics. That how I'm interested in telling my stories. Okay. So then I did BCA. Okay. During BCA, I did animation using computer programs like in C++ Okay. and Java. Uh-huh. Yeah. Yeah. So, yes. So then my uh, friends, they told me that why are you in this field? Mm-hmm. You are very creative person, so you should join this kind of industry, creative Right. industries. Right. So after completing my BCA, I start working on this search which will be the better institutes for this. Mm-hmm. So Mm-hmm. then I complete my diploma in animation Mm-hmm. in from. Mm-hmm. So after completing in that, then at first I joined a gaming industry. Okay. I was in gaming industry, yes. Mm-hmm. Mm-hmm. So at that I was not happy because my interest is in filmmaking Mm-hmm. or Mm-hmm. working in film industry like that. And Okay. it's a gaming industry, and it is totally different from the film industry actually. Uh-huh. Okay. So Okay. after I convinced my parents Mm-hmm. about this that I'm interested in VFX. Mm-hmm. So and my parents are actually very supportive in selecting my this career, Mm-hmm. in this Mm-hmm. career. Mm-hmm. So they're very supportive. Do whatever you want. Right. They never complain that why did you BCA if you want to do this. Right. Right. So they never complain. They every time they support me. Correct. Correct. So then I start working on my showreels in VFX Your because stories, sorry? I have to we have to create a showreels. Showreels. Every student, Okay. every Uh-huh. student or Uh-huh. every person who is Uh-huh. in this industry, they Uh-huh. have to make showreels. Okay. Showreels like any VFX showreels, Uh-huh. VFX or short movies of their own projects. Okay. Like they create something shooting, Uh-huh. shoot on their areas, nearby areas, or at home Mm-hmm. place. Mm-hmm. Mm-hmm. Simple stories, simple VFX Okay. stories. Okay. So they have to make a showreel of that, of all have the work they have done. Uh-huh. Uh-huh. Kind of a demo reel. Kind of, yeah, right. Right. Yes, demo reel. Their work reel, or you can say. Okay. Okay. Mm-hmm. तो उसके बाद जो है सर्च के बाद मैंने चंडीगढ़ में प्राइम फोकस एक VFX कंपनी है, Uh-huh. वहाँ मैंने ज्वाइन किया. Okay. तो उसके बाद हाँ उसके बाद कंपनी टू कंपनी में एक्सपीरियंस मैंने गेन किया Right. एंड डिपार्टमेंट स्विच भी हुए, मैं ऊपर Mm-hmm. मतलब चेंजेस हुए मेरे उसमें. Mm-hmm. So yes, I'm happy right now where I am. Mm-hmm. Good. Good. Yes. Yes. No, good that I mean it's a very interesting in a way that like you did BCA, and after BCA Yes. mostly people do either MCA or they do Yes. job as a Yes. programmer or something like that, right? But it's good that you found your passion and you pursued that. Actually, I did BCA on a purpose actually initially. Okay. When I was looking for the course that includes this computer graphics or animation field. Uh-huh. So there is a subject in the last semester, you can say, Okay. about animation and VFX. Okay. So I was very interested.
okay, if I did BCA, then I have a knowledge of computer languages and CG and computer graphics and animations. Okay, right. So, but when I joined BCA, when I got the admission, then I came to know that they removed their subject totally. From my batch, they removed their subject, animation and graphics. Okay. Yes. So after completing BCA, then I joined this diploma course in animation and graphics. Okay, good. I think at that time, probably this Arena Multimedia was going on, right? That institute was probably very prominent in teaching this 3D and all those things, right? So because I know couple of softwares. I think Photoshop is one of those softwares, right? Then Dreamweaver. And Maya is also one of the softwares, right? Maya is the best actually in 3D modeling and texturing. Actually जो भी CG जो भी हम object create करते हैं उसमें Maya सबसे best मानते हैं, mainly in VFX. If you are keen to join VFX industry, then you should know Maya. There is other 3D subjects also like Max, Autodesk Max. Yeah, Max. So, but that software is mostly used in interior design. Okay. Yes. Yeah. But for VFX, Autodesk Maya is very important. Right. Why I know certain software is because like my mother used to create static websites, and she used to work on Dreamweaver, Photoshop. And she had that interest to work on Maya, but I think it was very expensive at that point of time. Yes. So but yeah, anyway, okay, it's interesting, Hitesh. Now if you could explain at least theoretically what is VFX or visual effects, and then probably you can explain it with some practicals. Yeah. Okay. VFX you can say is compositing two different things in a one still image or in a video clip actually. Like any two footage that from the computer totally from different style actually, you can say format, combining a CG object with the live action footage. Right. And any action of that CG object in the live world, in the real world. So composing both the things together, it's actually the VFX. The normal, you can say normal language. Right. If I have to tell someone. Correct. So you're saying that any real footage, any real video that we shoot, right? Yes. Plus CG as in computer graphics, right? So and that CG includes anything, right? It could be a photo also or another video also, right? So combining both of them is actually a VFX. So initially, right now, it's the term is that. Okay. But before computers, when the film industry started working on computers, before that, they used to play with photography, or you can say trick photography. Okay. Yes. So actually, the father of the VFX is George Balanis. He's the father of VFX industry. Okay. So he did a trick photography, like exposure, overexposing an image. Then it combining with the other reel. So any example that you could share? Any example from any movie? Saw हातिम ताई movie जैसे देखी आपने? हातिम ताई, हाँ, मतलब नाम याद है शायद. ब्लैक एंड व्हाइट टाइम पे जैसे हम पहले देखते थे कि अभी ओम शांति ओम का एक मूवी में सीन है जिसमें शाहरुख एंड दीपिका वो एक गाड़ी में बैठे हुए हैं, वो ड्राइव कर रहे हैं और पीछे एक बड़ा सा स्क्रीन चल रहा है, पीछे एक वीडियो चल रहा होता है और उसके आगे मतलब पहले दिखाते थे ना कि गाड़ी तो स्टिल रहती थी लेकिन पीछे का रील चला रहे थे. हाँ, यस, वो तो अभी भी होता है, लाइक इन सर्टेन, वो अभी भी होता है. हाँ, तो बस अभी क्या है कि वो पीछे वाली स्क्रीन की जगह ग्रीन स्क्रीन ब्लू स्क्रीन ले लेंगे. हाँ, राइट. तो पहले तो क्या होता था कि जब कंप्यूटर्स नहीं थे तो जो भी फोटोग्राफर भी कैमरामैन जो होता था वो फिल्टर यूज करता था.
हाँ. तो अगर वो ग्रीन स्क्रीन पीछे है तो वो ग्रीन फिल्टर यूज करता था, तो उससे पीछे जो ग्रीन स्क्रीन होती थी वो सुपर इम्पोज हो जाती थी, जिसकी वजह से सिर्फ जो कैरेक्टर थे वो शो होते थे. ओके ओके. और मैं थोड़ा समझ पा रहा हूँ, बट अगेन राइट, सो यू आर सेइंग कि पहले ट्रिक फोटोग्राफी से ये चीजें अचीव हो जाती थी कि अगर लोग कार में जा रहे हैं तो कार तो वही ही है, बट बिकॉज ऑफ द बैकग्राउंड वो सब यू नो लाइक उससे ऐसा फील होता था व्यूअर्स को कि भाई एक्चुअली में कार ये चल रही है, राइट. राइट. और या फिर एक एग्जांपल ऐसा भी है कि जैसे एक नॉर्मल सा शूट है, लेकिन जैसे अलादीन और कोई भी हातिम भाई वाली मूवी आप देख लो, उसमें एक कारपेट पे अलादीन या फिर जो भी हीरो है वो उस पे खड़ा होके उड़ रहा है. राइट. तो उस समय क्या करते थे ऐसे सीन के लिए, या तो वही अपना ग्रीन स्क्रीन का यूज करके या फिर फिल्टर करके यूज करके उसको दो अलग अलग इमेज को कंबाइन करते थे. राइट. और कंबाइन करके क्या वो कंप्यूटर पे नहीं होती थी, क्योंकि उस टाइम तो कंप्यूटर्स थे नहीं. हाँ. वो जो रील्स आती थी, जो शूट के बाद जो रील्स बनती थी, उस रील के ऊपर काम करता था. अच्छा. एक कोई भी VFX आर्टिस्ट जो उस टाइम थे वो उस रील के ऊपर काम करते. मतलब वो रील को भी कहीं पे तो ओके. वो सपोज करो कि शाहरुख खान ही इज फ्लाइंग, राइट, is flying in a studio, right, and there is another scene in the Kasauli Manali hill station area. So director's point of view is to showing that Shah Rukh Khan is flying over there. Correct. Right. So initially they cut Shah Rukh Khan's image from that reel, every reel. Okay. Yes, they cut the Shah Rukh Khan's you can say cut out. Okay. पूरा literally जो crop करते हैं हम ऐसा. They just put that or they paste on that the Manali's reel. Someone should they shoot a pan shot of the Manali. Okay. So two different images they combine on the one reel, and that we show. So अगर आपने कोई ब्लैक एंड व्हाइट मूवी देखी होगी तो आपको उसमें पता चलता है कि हाँ ये कुछ अलग से जा रहा है. right. So at that time our parents or people at that time, they were very happy because it's very new thing. Correct. So people flying. Correct. But right now we can know that it's how they did that. Right. Right. Okay. So VFX was from that time. Okay, right. So when computers came, they just reduced that efforts. Paperwork will reduce. और थोड़ा वो फाइन ट्यून भी हो गया. राइट. और थोड़ा फाइन ट्यून भी हो गया कि पहले जो दिखाते थे वो पता चल जाता था कि यार नहीं ये दोनों क्लिप कंबाइन की है. And there is a cutout and you can say different marks. Correct. Or even if you have to see a special magic trick, like sparkles and blast. So at that time, the artists they drew on that reel. Acha. On the final reel, yes, frame by frame, that's blast is going on. Okay. So that's the VFX. मतलब व्हेन यू से कि वो लोग वो ड्रॉ करते थे, मतलब वो लिटरली फिजिकल जो रील होती है उसके ऊपर ड्रॉ करते थे. अच्छा, तो वो तो कितने सारी मतलब कितना काम होता है ना, लाइक बिकॉज रील इज वेरी बिग, राइट. वो जो अपने मूवी की जो रील होती है, सो ऑन लिटरली फॉर ऑन ईच फ्रेम दे यूज्ड टू ड्रॉ, इज इट? Yes. Achha. Even in this digital, when the computers came, when we work on digitally, in that case also we have to work on per frame. Right. Okay. Yes. Correct. But it reduces the efforts because we have some tools and tricks. And yes, of course. Yes. Of course. So it reduces the time and save our time. Correct. And, we got the refining and the quality work like that. Everything, even the stop motion. If we can right now, we saw Godzilla or Jurassic Park or any King Kong movies. Right now we can just create in these computers and create a CGI version of that.
At that they either use the rig, either they use the puppets of the Godzilla or King Kong, or they use the clay. And every time they use a stop motion trick. Okay. They just make a pose of a dinosaur in one position. Then for the next, they move the another posture of that character. Any other hand movements. So frame by frame, then you play that full reel. Correct. Like the dinosaur is walking, or the Godzilla is something. He did some hand movements or like that. Right. So okay. So Hitesh, इसमें तो ऐसा लग रहा है, because if I see that it's a lot of work, right? ये तो बहुत काम. I mean, because for हाँ, पहले यह इतना ही वर्क होता ही था पहले स्टार्ट में. Even जो जुरासिक पार्क जो 1993 में जो आई थी, राइट, उसने एक बेंचमार्क सेटअप किया था, राइट. तो स्टीवन स्पीलबर्ग ने ये बोला था कि मुझे जो मूवी बनानी है वो ऐसा अभी हमको कंप्यूटर्स का यूज करना पड़ेगा, राइट, क्योंकि मुझको रिफाइनमेंट चाहिए अपनी उसमें क्वालिटी चाहिए, राइट. सो उन्होंने दोनों का यूज किया, उन्होंने पपेट्स का भी यूज किया है और उन्होंने सीजी भी यूज किया. ओके, राइट. सो या बिकॉज आई मीन आपने बहुत अच्छा टॉपिक इनिशिएट किया है, क्योंकि जुरासिक पार्क इज वन ऑफ माय फेवरेट मूवीज. ओके, सो मैं आप नहीं बोलते तो भी मैं उसके ऊपर पूछने वाला था, बट यस, इफ यू कुड एक्सप्लेन कि एग्जैक्टली कोई भी एक सीन, या तो फिर जुरासिक पार्क का या फिर आपको कोई भी दूसरी मूवी, इफ यू कैन यू नो, कि पूरा डिकोड करके समझाया कि ये एग्जैक्टली कैसे बना था. ओके, सो एंड बिफोर दैट मुझे मेरा एक क्वेश्चन ये भी है कि ये जो ग्रीन स्क्रीन है, right? Why green screen? What's special about green? Actually, we used two screens for that. Main, the in VFX industry or in any creative field, three colors are main important. The primary colors, RGB, red, green, blue. Right, RGB, yes. So we used either green or either blue, not red. Okay. Because if red is in everywhere. Because if we use red, then the computer machine or the software, it catches our the skin tone also. Because the red is in our skin tone also, it catches the red channel. It's working on the channel base actually, the red, green, and blue. So if I use the red channel, then it catches the our skin tone, any human skin or any living thing around there. Okay. So if I apply that formula, then the character will also got invisible. Okay, नहीं मैं थोड़ा समझ पा रहा हूँ हितेश, बट मुझे मतलब जो लोग ग्रीन पर्दा यूज करता है बैकग्राउंड में, राइट, तो लाइक मेरा अंडरस्टैंडिंग है कि बिकॉज अगर ग्रीन पर्दा है तो जब आपका फाइनल मूवी बनेगा तो उसमें आप ग्रीन की जगह पे कुछ भी पीछे फिर आप मर्ज कर सकते हो, राइट, दैट इज द गोल, राइट. सो अगर मेरे पास ग्रीन पर्दा नहीं है, इफ आई हैव दिस नॉर्मल बैकग्राउंड, तो मेरा वो काम नहीं होगा, लाइक आई कैन नॉट रिप्लेस इट विथ माउंटेन्स और एनीथिंग. We can use that also, but for that we did a rotoscopy for that purpose. नहीं, तो फिर ग्रीन पर्दे का और इसमें नॉर्मल के इसमें डिफरेंस क्या है? ग्रीन कर्टन से होता क्या एक्चुअली? कर्टन से क्या होता है कि सिर्फ एक प्लेन अगर ग्रीन स्क्रीन होगा तो हम उसको इजीली रिमूव कर सकते हैं, क्योंकि वो सिंपल एक चैनल में, जिससे हम पहले ट्रिक फोटोग्राफी से फिल्टर यूज करके हम उसको डिसेबल कर देते थे ग्रीन स्क्रीन को. ओके. तो सेम इसी चीज में जब हम पीछे ग्रीन स्क्रीन या फिर ब्लू स्क्रीन यूज करेंगे, तो जो भी हमारा जो सॉफ्टवेयर होता है, जो उसमें हम चैनल यूज करते हैं, तो वो उसको एक्चुअली वॉश आउट कर देता है या फिर उसको रिमूव कर देता है. राइट, जैसे आई थिंक नाउ आई अंडरस्टैंड. करेक्ट. जैसे अपने एमएस पेंट में वी जस्ट रिप्लेस द होल. हां, राइट. सो it help us a lot in that if we use the two screens. Okay. Why we use blue screens? That sometimes if I did a shooting in a forest. Okay. If I did just think that I'm using a green screen in a forest. Okay. So when I applied that,
the green screen channel. When I remove that, I use the superimposed or reduce the green channel, then it select the forest, leaves, grass, because they are also green. So it catches that color, their colors also. Acha, so you are saying so in that case we used a blue screen. And rather other than that we use green screen. Basically most of the time we use green screen. Okay, and probably I'm asking again, why the color green is because it may reflect, the green color has the capacity not to reflect or to reflect certain colors that the character has or the surrounding has, कि जो ओरिजिनल है वो ऑब्जेक्ट्स या कैरेक्टर वो ओरिजिनल कलर में ही रहे, बिकॉज ग्रीन कलर विल नॉट अफेक्ट द ओरिजिनल कलर्स एंड शेडो और सराउंडिंग्स. आई थिंक मैं ऐसा समझ रहा हूँ, राइट? हाँ, नहीं वो होता है. तो सबसे पहले जब हम ग्रीन स्क्रीन यूज करते हैं, हमने ग्रीन स्क्रीन को उसको रिमूव कर दिया, राइट? तो कोई भी जब हम कलर्स, अभी आप नॉर्मली भी आप देखते हैं ना, मतलब जैसे मैंने अगर ब्लू कलर का तो उस ब्लू कलर का जो रिफ्लेक्शन होगा मेरे स्किन पे भी पड़ता है, पास का जो एरिया है वो भी उसका भी पड़ता है. तो वो सेम उसका ग्रीन चैनल अगर मैं यूज करूंगा, मैं ग्रीन स्क्रीन का यूज करूंगा, तो उस पे शो होता है. तो वो चीज भी जो होती है ग्रीन स्क्रीन रिमूव होने के बाद फिर उस पे कलर करेक्शन किया जाता है उसके ऊपर, ओके, ताकि वो जो ग्रीन है वो ना शो विजिबल. राइट राइट राइट. ओके, उसके बाद ये जो भी होता है कंपोजिटिंग का वर्क होता है, जो भी वो सब उसको चेंजेस करता है, एडिटिंग करता है, उसमें ब्राइटनेस, जो शैडोज हैं, लाइट, जो भी कलर करेक्शन के जो भी टेक्निक्स होते हैं वो रिमूव करने के बाद वो अप्लाई करते हैं, ताकि वो जो भी कलर है वो उस एनवायरनमेंट करे. और उसमें ना लाइटिंग भी बहुत मैटर करती है, राइट? कि सपोज अगर मेरे को कोई जो लाइट है वो कहीं लैंप से आ रही है, लाइट ऊपर से, सीन शूट किया जिसमें मेरे सामने लैंप है और ऊपर है, वहां से लाइट आ रही है, तो जब मैं ग्रीन स्क्रीन में शूट करूंगा तो भी सेम डायरेक्शन से ही लाइट आनी चाहिए. तो शूट भी ऐसा नहीं होता कि ताकि उसके ऊपर वो, अगर मैं उसको कंपाइल भी करूंगा, मतलब अगर मैं ग्रीन स्क्रीन की जगह पीछे में बाहर एक स्ट्रीट का सीन दिखा रहा हूँ, तो उससे मैच हो, इसके लिए सेम शूटिंग जो होती है वो ग्रीन स्क्रीन के ऊपर के टाइम पे भी होती है. ओके ओके, थैंक यू हितेश. ये मैंने पहली बार समझा, कि देखा बहुत है शूट पे कि ग्रीन स्क्रीन होती है, बट आई understood the reason today. So yes, thank you for explaining, Hitesh. Okay, now coming to the practical aspect, so it would be best if you could explain with some some any movie that you could take example for, and you could show how this VFX play a role. I will share my screen. Yeah, sure. Yes, please. You see, so in Jurassic Park, at that time, there is a character in that dinosaur's puppet. Right. You can see, yes. So at the first time in the Jurassic Park 3, so Steven Spielberg used both techniques, the CGI techniques and this puppets, or you can say animatrix, you can say. As you can see, yes. So this part is actually full CGI, because you can say this is beyond human possibilities. Right. This is very impossible to show on a shoot. Right. This is huge dinosaur, है ना? So that's why जो भी जो चीज होती है जब पॉसिबल नहीं हो सकती है, उस टाइम पे हम बेसिकली CGI यूज करते हैं VFX में. ओके. अभी इस टाइम ये जो भी ये डायनासोर था, ये उन्होंने CGI में क्रिएट किया. So yeah, now okay. Right. And here ये बहुत ही फेमस सीन है, right, जब वो एक्शेल से निकल रहा हो.
तो इस टाइम उन्होंने क्या किया कि ये पूरा एक पपेट है, नीचे से ही एक किसी पर्सन ने अपना हैंड मूवमेंट से उसको रिग को यूज करके इसमें मोशंस दिए हैं। अच्छा। तो ये हाँ मतलब सबको ऐसा लगेगा कि ये भी सीजीआई से क्रिएट किया है, लेकिन नहीं, इन्होंने जहाँ डायरेक्टर को लगता है कि हाँ वो इसको बिना सीजीआई के वो परफॉर्म कर सकता है, तो उन्होंने यहाँ पे पपेट्स का यूज किया। ओके ओके। ये यहाँ पे भी जो ये सिर्फ इसका हेड पार्ट है, अगर आप देखोगे ना, ये जो हेड पार्ट था, मैं बैक जाता हूँ। हाँ राइट। हाँ, सो यहाँ इस वाले सीन में पूरा एक तरह से क्रेन है जो इसके जॉ को ऐसे ओपन और क्लोज कर रहा है। ये पूरा जो सिर्फ ना नेक पार्ट तक जो है, ये पूरा एक एनिमेट्रिक्स है, जिसमें इन्होंने हाँ पूरा एक रिग क्रिएट किया। अब ये जो एक इतना बड़ा रिग, इतना डायनासोर में एक मोशन आना, ये पॉसिबल था, तो ये उन्होंने सीजीआई यूज किया। अच्छा, ये यहाँ पे सीजीआई है। ओके। हाँ मतलब ये मतलब इसमें क्या होता है कि समटाइम्स जो भी डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स होते हैं वो भी यही चाहते हैं कि उनका जो भी एक्सपेंस है वो कम से कम उसमें हो जाए। राइट राइट राइट। तो ये डायरेक्टर का भी पॉइंट ऑफ व्यू होता है कि हाँ यहाँ जरूरत है सीजीआई का, तो वो सीजीआई यूज करता है, और जहाँ उसको लगता है कि मेरे सीन में बस डायनासोर का सिर्फ पैर लेग दिख रहा है या फिर उसका हेड दिख रहा है, अभी ये सेम है, अभी देखो सीन में सिर्फ इसका हेड दिख रहा है, तो उन्होंने एक रिग यूज कर लिया। अच्छा। अब ये आगे वो चल के जा रहा है, ये एक इतना बड़ा पपेट और इतना बड़ा रोबोटिक बनाना थोड़ा इम्पॉसिबल था, तो उन्होंने सीजीआई यूज किया। अच्छा ओके। अभी थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है, बट मेरा क्वेश्चन ये है अभी हितेश कि ये आइदर पपेट और सीजीआई राइट, उसको फिर रियल क्लिप के साथ मर्ज कैसे करते हैं? इसके लिए भी वो पूरा रिसर्च वगैरह सब करते हैं, क्योंकि सिर्फ उन्होंने एक सिंपल एक शूट जो इन्होंने ये शूट किया है, यहाँ पे ना ये कार थी और ना है डायनासोर, ये दोनों ही सीजीआई है। अच्छा मतलब अच्छा ओके। क्योंकि इस कार के ऊपर भी जो उन्होंने डायनासोर जो भी एक्शन कर रहा है, वो उसके लिए भी उनको रियल उसमें शूटिंग के टाइम वैसा परफॉर्म करना पड़ा, तो वो थोड़ा सा हेक्टिक था, तो उन्होंने पूरे सीजी में क्रिएट किया। तो उसके लिए सबसे पहली बात तो है कैमरा का जो मोशन रहता है, वो भी हम रियल वर्ल्ड में जो हम कैमरा में मोशन लेकर आते हैं, वही सेम कैमरा मोशन, वही सेम चीज हमको जो सीजी वर्ल्ड है, जो कंप्यूटर वर्ल्ड है, उसके अंदर भी सेम हमको मोशन लेकर आना था। तो जब वो दोनों चीज सेम होंगी, तो ऑब्वियसली जो भी हम जिस भी सीजी ऑब्जेक्ट को हम रियल वर्ल्ड में कंबाइन करना चाहते हैं, वो उसका पार्ट लगता है। तो सिर्फ उसके बाद सेम उसके ऊपर वो लाइटिंग अप्लाई करते हैं, उसके ऊपर टेक्सचर, क्योंकि कोई भी रियल वर्ल्ड में भी अगर आप चेक करोगे, तो हर एक चीज जो भी आपके आसपास रहती है ना, उसका एक रिफ्लेक्शन उस पर पड़ता है। राइट राइट। रिफ्लेक्शन पड़ता है, शैडो पड़ता है। करेक्ट करेक्ट। कैसी लाइटिंग है, कैसा एनवायरनमेंट है। राइट। तो सेम जो चीज है, जैसे अभी मैंने ये मोशन तो मैं लेकर आ गया डायनासोर का, और वो इस जीप के ऊपर वो अटैक कर रहा है, ये मैं लेकर उस पर आ गया। लेकिन सेम जो उसका जो एक लिजर्ड का या फिर कोई भी रेप्टाइल जैसा टेक्सचर जो रहता है, राइट है ना, मतलब हर एक जो भी ऑर्गेनिक थिंग्स हैं, मतलब ह्यूमन स्किन हो गया या फिर एनिमल हो गए या फिर रेप्टाइल्स हो गए, राइट, सबके ऊपर लाइट का अलग अलग इफेक्ट है। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। तो अभी ये नाइट का सीन है, और आसपास जो भी स्ट्रीट लैंप्स वगैरह जो भी हैं, लाइट्स है, उसका जो इसकी जो स्किन पे जो इफेक्ट पड़ेगा वो भी डिफरेंट हो। तो हम जो भी वर्क होता है वो सब चीजों पे होता है, मतलब इसके टेक्सचर पे, उसकी लाइटिंग पे। यहाँ पे उन्होंने एक स्मोक क्रिएट किया, वो स्मोक इसके आसपास होना चाहिए। अगर
रेन हो रही है, बारिश वगैरह सब हो रही है, फिर स्नो है ना, तो वो भी उसके ऊपर जो भी इफेक्ट पड़े वो भी विजिबल होना चाहिए। राइट राइट। जब भी शूटिंग होता है ऐसा, तो एक कलर पैलेट भी यूज करते हैं साथ में कि हाँ हमारा ये कलर पैलेट है, तो ये जब अगर कोई भी वीएफएक्स आर्टिस्ट को ये पता चल जाएगा सीन को उस पे वीएफएक्स अप्लाई करने के टाइम पे कि हाँ इस सीन में ये वीएफएक्स ये कलर पैलेट है उसका, तो वो भी इस पे ध्यान में रखता है कि हाँ मुझे इसका ये इस तरह कलर करेक्शन करना है, मुझे इसका ये नाइट सीन है। सेम सीजी वर्ल्ड में लाइटिंग भी होती है, उसमें हम लाइटिंग भी अप्लाई करते हैं। फिर एक एंड में कंपोजिटर होता है जो कंपाइल करता है पूरे सीन ओके कि जिसमें वो एक रियल वर्ल्ड होगा, सबसे पहले जो भी फुटेज जिस जगह शूट किया उन्होंने वो एक प्लेट आता है, और फिर उसके ऊपर सीजी जो भी ऑब्जेक्ट है वो उस पर क्रिएट होता है, फिर उसके ऊपर टेक्सचर, उसके ऊपर लाइटिंग, रिफ्लेक्शन, शैडोज। फॉर एग्जाम्पल कोई एक सीन पे थोड़ा पॉज करो ना, इफ यू गो बैक, जहाँ पे वो थोड़ा पीछे, हाँ बस ये हाँ राइट। हाँ देखो, फॉर एग्जाम्पल इसमें एक मैन है, देयर इज वन डायनासोर, सो यू आर सेइंग कि जब ये एक्चुअल में शूट हुआ होगा तब this character has to imagine that okay there is one dinosaur there, right? और उसको पूरा अपने हिसाब से उसको वो लाइट फेंकनी है and all, right? But in reality when the shoot happened there was nothing there, correct? Yes, sometimes they did that, but sometimes क्या होता है कि यहाँ पर एक puppet या फिर एक dummy वो रखते हैं ताकि उसकी हाइट पे, प्रॉपर हाइट पे, राइट, ताकि जो भी कैरेक्टर है वो उससे प्रॉपर इंटरेक्शन कर सके। हाँ, उसको भी आइडिया हो कि हाँ मेरे को यहाँ पे लाइट फेंकनी है, या फिर मेरा जो कैरेक्टर है इतना ऊपर है तो मेरे को इतना उसको हेड को इतना ऊपर करना है। तो वो प्रॉपर जो आई कांटेक्ट होगा उसके लिए भी ये जो हम यूज करते हैं वो काफी हेल्पफुल रहता है। मतलब समटाइम्स कहता है कि कुछ भी नहीं हो उसके लिए इमेजिन करना, उसके लिए उस टाइम पे एक्ट करना काफी डिफिकल्ट हो जाता है। तो सिंपल यहाँ पर क्या होता है कि वो कुछ भी पोल सा रख देंगे या फिर कोई डमी सा सिर्फ, हाँ राइट, करेक्ट, खाली एक हेड रख देंगे तो उससे उसका आइडिया हो जाएगा कि ये हाइट है उसकी, ये हाइट उसकी, राइट। और फिर सो आई थिंक बिकॉज ऑफ कोर्स नाउ इट इज वेरी इजी कि जब एक्चुअल में शूट हुआ होगा वो क्लिप है और उसमें से जो अभी आपने बोला कि एक डमी कुछ भी रखा होगा वो रिमूव करना इज आल्सो दैट इज इजी, राइट? आई मीन सो यू कैन मैनिपुलेट सो मेनी थिंग्स हियर कि ये सब चीजें पॉसिबल है। और दूसरी चीज सीजीआई में एक अलग से ऐसा बनाया होगा कि जो डायनासोर उसकी मूवमेंट हर एक फ्रेम में यहाँ से ऐसे आगे चला जाएगा, राइट? एंड व्हेन दे कंबाइन दिस टुगेदर अपने को ये ऐसा दिखता है, करेक्ट? सो वही ना प्रॉपर उस पे काम होता है, उस पे मतलब जैसा रियल वर्ल्ड में क्या चीज होती है पूरा रिसर्च हम करते हैं उस पे कि हाँ ये इस टाइम नाइट का शूट है या फिर डे शूट है, इवनिंग शूट है, तो तीनों टाइम पे अलग अलग लाइटिंग होती है। खासकर एक्सटर्नल अगर आप शूटिंग कर रहे हो, बाहर का अगर शूट कर रहे हो तो टोटल एनवायरनमेंट होता है, हर एक जो भी ऑब्जेक्ट रहता है चाहे वो ऑर्गेनिक हो या नॉन ऑर्गेनिक हो, सबसे अलग अलग उसका इफेक्ट पड़ता है। तो वो सब चीजें होती हैं, लाइटिंग, रिफ्लेक्शन, शैडो, टेक्सचर, एवरीथिंग। तो उसके बाद उसको फिर फाइनल कंपाइल भी करते हैं, और वो जो सीजी जो ऑब्जेक्ट है इतना करने के बाद भी उसको फिर उस सीन का पार्ट बनाना जो लगे कि हाँ सीन का पार्ट है वो भी मर्ज करना, राइट एवरीथिंग। तो मतलब इट इज आप ये कहते हो कि एक सीन पे डिफरेंट डिपार्टमेंट के जो लोग हैं वो उस पे काम करते हैं, सब अपना एक डिपार्टमेंट करेगा, एक डिपार्टमेंट लाइटिंग करेगा, एक उस पे टेक्सचरिंग करेगा, इवन जो डायनासोर्स का जो मोशन है मतलब एक डिपार्टमेंट होगा जो डायनासोर क्रिएट करेगा, और एक डिपार्टमेंट होगा जो डायनासोर में जो एनिमेशन आएगा वो उसमें लेगा। Nice. So, okay. I think so because if the movie or any scene has VFX, तो उसमें probably lot of work is needed, right? क्योंकि हमारा जो भी डायरेक्टर है या जो भी है उसको बहुत पहले से सोच के रखना पड़ेगा for each frame कि exactly ये ऐसा होने वाला है, right? So that you can merge it. Otherwise, you have to be very बहुत ही प्लानिंग के साथ करना पड़ता है, राइट? क्योंकि शूट में कोई रियल थिंग है नहीं, यू जस्ट हैव टू इमेजिन विद
कि भाई बाद में ये कैरेक्टर मतलब ये एनिमल की मूवमेंट ऐसे होने वाली है, राइट? तो फॉर दैट ना ये लोग इतना प्लानिंग हो प्रॉपर, उसके लिए वो स्टोरी बोर्ड क्रिएट करते। ओके। पूरा कि कॉमिक्स जैसे ही वो बनाते हैं कि हाँ मेरा ये भी सीन है, ये एक्शन सीक्वेंस है, राइट। तो उसका एक प्रॉपर कॉमिक्स टाइप बनाते हैं, और कॉमिक्स से ये एक चीज क्रिएट होता है कि उसके सीन में क्या क्या चीजें उसको जरूरत है, क्या जरूरत उसको पड़ेगी, प्रॉप्स, करेक्ट। क्या प्रॉप्स की जरूरत है, राइट। क्या क्या सब पीछे का एनवायरनमेंट होगा, क्या कैमरा एंगल्स से भी उससे हेल्प मिल जाती है। तो इसलिए जो डायरेक्टर होता है कि उसका प्लानिंग प्रॉपर चले, तो इसलिए सबसे पहले वो स्टोरी बोर्ड क्रिएट। ओके ओके, राइट राइट। नहीं सही है। एंड ये जुरासिक पार्क 1 में कौन सा सॉफ्टवेयर यूज हुए थे, इफ यू कुड शेयर? उसमें एक्चुअली सबको बहुत हैरानी होगी इस टाइम, फोटोशॉप जैसे जो सॉफ्टवेयर थे ना, उसी वैसे ही सॉफ्टवेयर यूज होते थे। और सीजी के लिए उन्होंने वही अपना जो जैसे माया जैसे सीजीआई सॉफ्टवेयर होते थे, सेम वैसे ही सॉफ्टवेयर होते थे। और जैसे ह्यूमन स्किन में, जैसे ह्यूमंस में बोन होती है, तो वैसे ही सीजीआई कैरेक्टर्स में बोन्स यूज करते थे कि हाँ ये इसमें बोन यूज हुआ है, और ताकि वो जो प्रॉपर एनिमल्स में जो मोशंस होते हैं वो उसके अंदर हम ला सके, कि वो वॉक कर रहा है तो वैसा ही वॉक करेगा, तो उसके लिए सेम उतने ही साइज का बोन बनाया जाता था, उतने ही मोशन उसमें लेकर आते थे। तो इस अच्छा, तरीके तो से एक क्वेश्चन है मेरा हितेश, कि ये समझने के बाद ऐसा लग रहा है कि if you are able to have a dummy, a puppet, right, on the shoot location, then I think it is more easy than creating a CG, is it? Creating a CG, dummy is they use for different purpose for that. उसमें भी एक्चुअली उतना ही मेहनत होता था पहले ही। उसमें भी प्रॉपर एक स्कल्प्ट आर्टिस्ट रहता है। सबसे पहले वो एक छोटा सा ना उसका स्कल्प्ट बनाते हैं डायनासोर का। हाँ, मतलब उसमें जैसे आप बोल रहे हो कि उसमें पूरा एनिमेट्रॉन मैंने वो सब आ जाता है, सो इट्स वी कैन नॉट एग्जैक्टली से के पूरे डमी को पेंट वगैरह करते हैं। हाँ, राइट 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 राइट, या और उसको फिर मूवमेंट देना दैट इज आल्सो डिफिकल्ट। कि सो आई थिंक प्रोबब्ली सीजी इज more easy, you know, it is easier than this, you know, puppet. Okay okay. जैसे पुरानी मूवीज में वो शार्क्स यूज करते हैं ना, कि अगर कोई एक जॉस करके एक मूवी है, जॉस, yes again, yeah, स्टीवन स्पिलबर्ग का, yeah, तो जो शार्क है वो पूरा डमी है एक तरीके से, मतलब वो एक रोबोटिक है, राइट। जैसे ही वो अपना जॉ ओपन करती थी, राइट, तो अंदर से जो एक मशीन होती थी वो उसको ओपन करती। सीजी नहीं, पूरा उन्होंने नकली डमी यूज किया था उसके लिए। तो उस पे भी काफी वर्कआउट होता था कि वो पूरा रियल लगे, जो उस पे स्कल्प्ट करने के बाद उस पे वैसा पेंट करना, कि वैसे ही पूरे जो मेकअप आर्टिस्ट थे वो सब इस पे यूज करते थे। तो हाँ, उस समय वो सीजीआई उसने यूज नहीं किया था स्टीवन स्पिलबर्ग। ओके ओके, ग्रेट यार, बहुत मस्त है, आपने एक्सप्लेन किया। द ओनली थिंग नाउ इज कि अभी है क्या है कि see when it's a very you know, like my personal story, 1993 में जब ये आया था, so I was so fascinated by this movie, और अभी भी हूँ। So the point is कि now अभी ये समझने के बाद, you know, now you feel कि यार ये तो behind the scene तो ऐसा है, so you have to forget कि you know this is real then. But yes, thank you Hitesh, that was nice, and but yeah, it shows it requires lot of work, lot of hard work, right? And you should have that vision कि exactly कौन सी फ्रेम पे क्या क्या होने वाला है, right? Then only I think this, you know, works. वही कि एक रील पे अगर आप किसी को ना आइडिया भी नहीं होता, जो एक मूवी सीन शूट हुआ है, उस एक VFX सीन पे कितने डिपार्टमेंट में कितने आर्टिस्ट ने एक सीन पे काम किया होता है, राइट राइट। उसका लाइटिंग, उसका टेक्सचरिंग, उसका मॉडल, उसका उस सीन को मर्ज करना, उसके कैमरा मूवमेंट्स को लेकर आना, राइट। क्योंकि समटाइम्स ऐसा होता है कि मान लो कोई भी आप एक सीन क्रिएट कर लेते हैं, उसमें मान लो मैंने एक शूट कर दिया, और सिंपल
कैमरा तो मूव हो रहेगा, लेकिन उसमें जो बॉल मैंने रखी है या फिर जो भी करेक्टर है, करेक्टर अलग सीन में जा रहा है और कैमरा मेरा अलग सीन में जा रहा है। समटाइम्स ये जो चीज इसी वजह से होती है क्योंकि मैंने उस कैरेक्टर पे वो उस जो रियल वर्ल्ड का जो कैमरा मोशन है वो उस पर अप्लाई नहीं किया मैंने, इसलिए वो स्टार्ट नहीं कर। ओके, so I'll just show you an example. Okay, yeah, please. In fact, Hitesh, if you could show with the example जो अपना अभी जो recent है मिशन इम्पॉसिबल वाला जो सीन, right, the bike scene. So अगर वो आप explain कर पाओ. You see there is a motion that ball is going other direction and camera is in other direction. Right. Ball seems not to be a part of this scene. That's ball. Acha, this ball. Okay. Right. Yes, it is not part of this scene. Right. The camera that I'm moving the camera in a rotation motion, and ball is in a different direction. Now, if you see in this scene that ball seems to be a part of this scene. Right. Yes. Right. Yes. So for that, हम क्या करते हैं, जो भी शूट हम करते हैं उसमें सर्टेन कुछ पॉइंट्स होते हैं, या भी कोई भी आप भी सीन में, हर एक सीन में वॉल पे, आपके फ्लोर पे, सीलिंग पे या फिर कोई आपके ऑब्जेक्ट पे पैटर्न बना होता है ना। तो हम क्या करते हैं, पूरे सीन को हम अपने कंप्यूटर में लेकर आते हैं और उन पैटर्न को यूज करके उन पैटर्न को हम ट्रैक करते हैं तरीके से। ओके। वो ट्रैक जब होता है तो वो ट्रैक ही जो रहते हैं अलग अलग पैटर्न्स के, वो हमको हेल्प करते हैं पूरा जो कंप्यूटर जो भी सॉफ्टवेयर है उसका, वो सेम मोशन लेकर आ जाता है जो हमने रियल वर्ल्ड में यूज किया। मैं थियोरेटिकली समझ पा रहा हूँ, बट अगेन आई विल ट्राई टू। ये ऐसा सब्जेक्ट है ना कि अनलेस यू डू हैंड्स ऑन तो वरना Now we start with Mission Impossible. Oh yes, in Mission Impossible I think dummies or puppets are not needed probably, right? Because there is no any other object living or some creature, right? Okay, yeah, go ahead Hitesh. So अभी मिशन इम्पॉसिबल में मतलब ये जो सीन है ये बहुत ही बहुत फेमस ये सीन हुआ VFX में, राइट, क्योंकि ये अब तक किसी ने पैसा परफॉर्म नहीं किया है और ऑब्वियसली टॉम क्रूज ऐसे एक्शन सीक्वेंस में करने में बहुत फेमस है। करेक्ट। तो ये जो जंप है जो उन्होंने जंप करी है बाइक से, राइट, इस जंप से पहले उन्होंने काफी सारे ऑलमोस्ट उन्होंने 500 जंप्स डेली वो करते थे। हाँ या वो आई नो दैट है, 500 जंप्स उन्होंने यस इससे पहले उन्होंने, है ना, राइट। सो अभी सिर्फ ये सीक्वेंस के लिए उन्होंने कि किस कैमरा एंगल से हम उसको शूट करें, राइट, क्योंकि उनको ड्रोन यूज करने थे, हेलीकॉप्टर से शूट करना था, अलग अलग एंगल से उनको शूट करना, राइट, क्योंकि उनके अलग अलग एंगल्स चाहिए थे टॉम क्रूज के उस सीन से जंप करने के, राइट। तो वो किस हाइट पे उनको ड्रोन्स रखने होंगे, किस हाइट पे हेलीकॉप्टर को प्लेस करना होगा, राइट, और कहाँ उनको कैमरा एंगल्स उनको रखने होंगे, तो उस कैलकुलेशन के लिए सबसे पहले उन्होंने वो डेली के डेली एक सर्टेन नॉर्मल एक जगह वो अपना बाइक से वो स्टंट करते थे, करेक्ट, नॉर्मल हाइट पे, राइट। तो उससे उनका उनको उन्होंने एक पैटर्न कैच कर लिया। हाँ, वो मैंने ये वीडियो देखा है कि उनको पूरा वो प्रोजेक्शन एक ट्रेजेक्टरी मिल गया कि व्हाट वुड बी द इन रियल सिनेरियो। यस। जो फाइनल सीन, अगर आप मूवी में फाइनल सीन में पूरा जो ये ब्रिज है, राइट, यहाँ पे तो उन्होंने ऑन शूट उन्होंने ब्रिज पे उन्होंने जंप किया, राइट, लेकिन जो फाइनल सीन है, फाइनल सीन में उन्होंने पूरा एक माउंटेन क्लिफ उधर उसको इस जगह रिप्लेस कर दे, राइट, है ना, अगर आपने सीन देखा होगा। यस।
So basically वो एक जो last में फिर they merge these two things, right? एक CG plus the real stunt, right? हाँ राइट। तो ये जो पूरा सीन है इधर, हाँ पूरा उस जगह उन्होंने एक सीजी माउंटेन बना दिया उधर, सीजी रॉक पार्ट। तो अभी ये जो भी इसका एनवायरनमेंट है, उन्होंने प्रॉपर वो टेक्सचर उसके ऊपर वो अप्लाई किया उन्होंने। So I think मतलब ऐसा लग रहा है हितेश कि creating this VFX in movies like Jurassic Park is more difficult than this one, right? ऐसा बोल सकते हैं हम कि हर एक का अलग ही है पूरा। हर एक का अलग अलग होता है। अभी आप क्रिस्टोफर नोलन की मूवीज को अगर आप चेक करोगे तो उस मूवी में, उनकी मूवीज में VFX बहुत कम यूज होता है। ओके वो बहुत कम VFX यूज करते हैं, वो प्रैक्टिकल जो चीजें रहती हैं उसको ज्यादा यूज करते हैं। और VFX में भी क्या होता है कि अगर आपने पूरा मूवी जो है मान लो आपने शूट कर लिया, पूरा मूवी सिर्फ ग्रीन स्क्रीन पे शूट किया, वो पूरा सीन जो है CGI लगता है, और फिर क्या होता है कि कैरेक्टर भी उस सीन के पार्ट नहीं लगते जब तक जो रियल वर्ल्ड के जो भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं, प्रॉप्स होते हैं, फिर भी उसमें प्रैक्टिकल जब चीजें उसमें अप्लाई नहीं होती, यूज नहीं होती, तो VFX भी अच्छा लगता है। तो इसलिए दोनों जो एक्शन सीन चीजें होती हैं वो दोनों अप्लाई होती हैं। मतलब अगर मान लो अपने सबसे जो बेस्ट एग्जांपल है उसका ट्रांसफॉर्मर्स है। ट्रांसफॉर्मर्स, ओके राइट, है ना। ट्रांसफॉर्मर्स में माइकल बे ने क्या किया कि उन्होंने एक तो उन्होंने पूरा शूट उन्होंने किया जिसमें वो ब्लास्ट कर रहे हैं, आज ब्लास्ट हो रही है, ये हो रही है, ये उन्होंने एक्चुअली में किया, राइट। लेकिन फिर स्टूडियो में जाके उन्होंने वो पूरे बड़े ट्रांसफॉर्मर्स को क्रिएट किया और सेम वही मोशन उसमें लेकर आया। जो प्रैक्टिकल उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था, प्रैक्टिकल जो शूट किया था वहाँ पे वो, और जो सीजी का जो भी उन्होंने उसमें ऐड किया, कंपाइल किया, उसकी वजह से वो जो सीन है वो और भी अच्छा लगा। ओके राइट ओके, काफी पता चला हितेश। So yes, okay. बाकी ये सब मूवीज में भी ऐसा ही हुआ होगा ना, जैसे बाहुबली में इतना दिखाया है, या फिर बाहुबली में, और बाहुबली में भी मतलब मेन क्या चीज होती है कि कोई भी आप अगर VFX शूट कर रहे हो उसमें सिर्फ कैरेक्टर ने विजन तो दे दिया कि हाँ मेरे को ये सीन सिर्फ शूट करना है, लेकिन वो सीन कैसे शूट होगा उस पे भी उसको रिसर्च करनी पड़ती है। हाँ ये जो सीन है मेरा, इस पे वर्क कर सकते हैं। तो जो भी VFX सुपरवाइजर्स जो रहते हैं शूटिंग के टाइम पे, वो उसको हेल्प करते हैं कि हाँ ये जो सीन, उसने कोई भी डायरेक्टर ने कोई अपना सीन समझा दिया कि उनको अपने इस तरह का सीन चाहिए, तो वो प्रॉपर वो भी VFX सुपरवाइजर जो रहते हैं वो गाइड करते हैं उनको कि हाँ ऐसे शूट कर सकते हैं। फिर वो पूरा उनको हेल्प करते हैं कि हाँ हम ये प्रॉप यूज करेंगे तो ये हमारा काम इजी हो जाएगा। फिर या फिर वो ये आइडिया देता है कि ये प्रॉपर CGI हो तो भी इजी होएगा। करेक्ट। तो ऑन शूट कोई भी जब भी कोई भी सीन में VFX यूज होता है तो वहाँ पे एक VFX सुपरवाइजर भी वहाँ पे रहता है। ओके। और आई थिंक आजकल सभी मूवी में VFX यूज होता ही है, राइट? कहीं ना कहीं पे तो, है ना? कोई भी सीन होता है, इवन अगर आप VFX तो नहीं, लेकिन हाँ वो आप कभी मूवीज देखते हो कि वो मूवी ब्लैक एंड व्हाइट है, लेकिन उसमें जो मेन हीरो हीरोइंस हैं या फिर जो मेन जो भी लीड कैरेक्टर्स हैं वो कलर में है, राइट है ना। तो उस सीन के लिए क्या होता है कि वो उसमें रोटोस्कोपी हम यूज करते हैं बेसिकली। रोटोस्कोपी इज जस्ट लाइक दी वो जो हम रील पे या फिर जब हम पहले कटआउट्स करते थे, है ना, न्यूज़पेपर में हमने किसी कोई भी सेलिब्रिटी आ गया उसका हमने कटआउट्स रख दिए। तो रोटोस्कोपी इज लाइक कि हर एक रील से हम उस कैरेक्टर को कट कर रहे हैं उसको फ्रेम बना, और फिर उसके पीछे जो भी है हमको उसको हमें उसका कलर करेक्शन करना है, उसको ब्लैक एंड व्हाइट शो करना है, उसके PG में कुछ उसको चेंज करना है। तो हम रोटोस्कोपी भी एक टर्म डिपार्टमेंट है, टेक्निक है, वो भी हम यूज करते हैं इसके लिए। ओके नाइस। ओके सो yes Hitesh, so it was about because a couple of things that I wanted to ask about VFX is that
this is all about entertainment industry and all, right? And as you said, कि बहुत सारा यहाँ पे potential है, and there is lot of things that one can do, right? इसका कोई, it all depends on your imagination basically, कि क्या करना है. So like I mean, a person who knows the VFX, I mean, about this, so I think you can create your own Jurassic movie as per your own story, right? आपको पता है तो कर सकते हो. ये होता है, अभी एक मूवी है एवरीथिंग एवरीवेयर, एवरीथिंग एवरीवेयर, एवरीवेयर, ऐसा एक मूवी है जिसमें सिर्फ मिनिमम VFX आर्टिस्ट थे जिन्होंने उसमें VFX दिया है, और उस मूवी को अभी इसी साल आई थिंक 6 to 7 ऑस्कर्स मिले. अच्छा. एक्टिंग में भी, स्टोरीज में, VFX, तो उसको ऑस्कर्स में मिले इस चीज के लिए. और तो मतलब मेरा ही कहने वाला है कि अगर आप VFX आर्टिस्ट का अगर विजन क्लियर है, वो आइडिया है कि उसको ये कैसे परफॉर्म करना है, उसके पास उसके पास एक आइडिया है कि हाँ मुझे VFX सीन क्रिएट करना है, तो मिनिमम लोगों के साथ भी वो एक मिनिमम 2-3 आर्टिस्ट के साथ भी वो क्रिएट कर सकते हैं पर्टिकुलर सीन में, कि हाँ मुझे बस ये स्टोरी कन्वे करनी है, स्टोरी में मुझे VFX चाहिए, तो वो भी कर सकते हैं. लेकिन उसके लिए मेन होता है कि आप आर्टिस्ट मेंबर्स कम हैं, ग्रुप कम है, लेकिन आपके रिसर्च और आपकी जो हार्डवर्क है, आपकी जो स्किल्स हैं, वो ज्यादा होने. अगर वो सब चीज बेटर है तो आप कम उसमें भी आप अच्छा आउटपुट दे सकते हो. राइट. और यहाँ पे सी फॉर एग्जांपल मूवी या कुछ भी है, तो I think it's more creativity of a director rather than VFX artist, right? Because as a VFX artist, you are supposed to do कि भाई आपको ये इतना करना है. How do you bring your creativity and innovation in doing this work? No, it's all about the director's vision. Right. So you are like yes. So you just have to use the software and make it happen, right? VFX आर्टिस्ट का बस ये स्किल होता है कि वो अपने किस स्किल का यूज करके इस VFX जो भी उसको टास्क मिला है, कि जो भी उसको सीन मिला कि हाँ उसको ये VFX उसमें करना है, VFX आर्टिस्ट का स्किल बस ये रहता है कि वो किस ट्रिक एंड टिप्स को यूज करके वो उसको मिनिमम टाइम में वो कर सके उसको परफॉर्म. तो वहाँ पे उसका काम होता है बस ये. जो भी उनको बस आइडिया होता है कि डायरेक्टर ने जो भी है उन्होंने एक सीन क्रिएट कर दिया कि ये सीन है, हमने ये सीन ऐसे शूट किया है और हमको उसमें ये चीज इफेक्ट्स उसमें लेकर आने. तो अब जो टीम होती है वो डिसाइड करते हैं कि हमको कैसे परफॉर्म कर सकते हैं. वहाँ पे VFX के आर्टिस्ट की जो भी है उनकी स्किल्स रहते हैं. Right. Okay. Now, as I said, it's about entertainment industry and all. How the VFX things can be applied in other domains and in other subjects. Is there any other application of VFX in apart from entertainment industry? VFX, I can't say VFX, but yeah, we can use जो CG effects. It can use in different things actually. Right, I want to create a chemical reaction scene. है ना, कि कोई भी केमिस्ट्री के कोई स्टूडेंट्स होंगे, अभी दो केमिकल्स को रिएक्ट अगर मैं परफॉर्म करूँ उससे क्या केमिकल रिएक्शन होगा, मैं कंबाइन करूंगा तो वो चीज जो है अगर मैं VFX का यूज करूँ, CG का यूज करूँ, अगर उसमें मैं वो इनपुट्स डाल दूँ ये जो केमिकल जो भी जो लिक्विड है इसकी ये प्रॉपर्टीज है, इधर देखिए ये प्रॉपर्टीज है, तो अगर दोनों को मैं मर्ज करूंगा तो इससे ये रिएक्शन होगा. तो हाँ, इस तरीके से हम हेल्प कर सकते हैं. या फिर किसी जो भी मेडिकल स्टूडेंट्स रहते हैं उनको उसमें हम हेल्प कर सकते हैं कि हाँ ये जो सर्जरी है इतनी कॉम्प्लिकेटेड, उसको हम और कैसे इजी कर सकते हैं. ये आप सोच सकते हो कि जैसे हम आजकल MRI स्कैन, CT स्कैन हम एक 2D शीट्स पे देखते हैं, हम और कन्वे कर सकते हैं अगर उसको थोड़ा 3 डायमेंशनल कि हाँ ये प्रॉब्लम है, ये इधर है,
तो जो भी डायरेक्ट डॉक्टर्स वगैरह होंगे जो सीख रहे होंगे, जो स्टूडेंट्स होंगे, उनको भी और इजीली हेल्पफुल होगा कि हाँ ये इधर, या फिर कोई पेशेंट है उसका कोई डायग्नोस चल रहा है, फिर कोई इसका ट्रीटमेंट चल रहा है, तो उसको हम समझा सकते हैं कि देखो आपके अभी ये प्रॉब्लम चल रही है, और अगर हम ये ट्रीटमेंट आपके ऊपर अप्लाई करेंगे तो इस तरीके से आपकी बॉडी में चेंजेस आने शुरू हो जाएंगे, अभी आपका ये सिचुएशन है। और किसी भी स्टूडेंट को हम समझा सकते हैं, उनको हिस्ट्री की जैसे क्लासेस होती है, जैसे कि हाँ भाई पे ब्रिटिशर्स ने इस तरह अटैक किया, इस तरह से इन्वेड किया, फिर जो भी मुगल्स थे उन्होंने अटैक किया, या फिर कितने काफी लोग जब भी वॉर्स होती हैं उसके जो भी आसपास जो भी मॉन्यूमेंट्स होते हैं उनका वो डिस्ट्रक्शन हो जाता है। तो हम पहले ये दिखा सकते हैं कि देखो ये सीन था पहले, मतलब इस तरीके से पहले ये मॉन्यूमेंट या टेम्पल ये दिखता था पहले, लेकिन फिर वॉर हुई, फाइट हुई, तो उसके बाद ये इस तरह से इसमें चेंजेस आने शुरू हुए। तो उनका पूरा विजन दिखा सकते हैं। हाँ एग्जैक्टली, कि आप किसी को विजुअलाइज करने में हेल्प कर सकते हो कि भाई दिस कुड बी द पॉसिबिलिटी, राइट। अभी जो भी हम माया अगर मैं यूज करता हूँ तो माया में एक टॉपिक है डायनेमिक्स। ओके। तो डायनेमिक्स में जो भी आप इफेक्ट्स देखते हो ना, सिर्फ फायर का हो गया, या फिर लिक्विड फ्लो हो गया, या फिर कोई ब्लास्ट हो गया, या फिर कोई सीजी कार है वो एक रियल का वॉल से अगर वो टकरा रही है, मतलब वो ही जस्ट है ना, तो ही जस्ट स्टक ऑन द वॉल, तो वो सीजी वॉल पे भी वो ऐसे इम्पैक्ट पड़ना चाहिए। एक फिजिक्स के प्रिंसिपल यूज हो गए। तो हम ये भी बता सकते हैं कि कैसे जो फिजिक्स कैसे यूज हो सकती है, कि कैसे कि ये कार इतना स्पीड से जा रही है, जैसे हम क्वेश्चन होता था कि हाँ कि कार स्पीड से जा रही है और उसके कार के टायर इतने टाइम में इतने मोशंस जा रहे हैं, तो हम उनको ये बता सकते हैं कि देखो कार मूव हो रही है, उसके टायर्स कितने फास्ट मूव हो रहे हैं। या फिर एक बॉल दूसरी बॉल से जब दोनों जब एक दूसरे टकराएंगे तो फिर क्या रिएक्शन होगा। दैट इज एक्चुअली गुड एप्लीकेशन, राइट, कि यू can show कि what could be the possibility so that you can take certain actions, right. इस तरह के वही ना फ्यूचर का हम बता सकते हैं कि इवन जो भी इंजीनियर्स वगैरह यूज बनाते हैं, कोई भी अपना कार्स मॉडल बनाते हैं, वो भी सबसे पहले यही चेक करते हैं कि हाँ इस पे इस तरह का इम्पैक्ट पड़ेगा, तो हम अपनी कार को और थोड़ा सेव करते हैं कि जब भी कुछ फिजिकल कांटेक्ट हो तो ये उस पर रिएक्शन ना हो हमारी कार में, जो भी हम इंट्रोड्यूस करने वाले हैं। इस तरह से हम यूज कर सकते हैं। या फिर अगर मान लो कोई स्पेस में हमने देखा कि एक कॉमेट है जो अर्थ के पास आ रहा है, तो साइंटिस्ट जितने भी रहेंगे नासा के या फिर इसरो, जो भी वो आइडिया लगा सकते हैं कि ये जो एस्ट्रॉइड है अगर इस डायरेक्शन से टकराएगा तो उसको हम किस एंगल से उसको उसके डायरेक्शन को डाइवर्ट करें ताकि वो अर्थ के रहे। तो ये भी चीज हेल्पफुल हो सकती है इससे। राइट। ओके हितेश, दिस हेल्प्स। मजा आया काफी समझने में। बट आई थिंक द बेस्ट वुड बी कि अगर कोई जब हैंड्स ऑन करेगा प्रैक्टिस, तब उसको और ज्यादा पता चलेगा, दैट आई कैन अंडरस्टैंड, राइट। तो अभी आप जैसे वैसे कुछ हॉस्पिटल्स से भी आप चेक करते हैं, तो उसमें हॉस्पिटल्स में पेशेंट को जैसे बताते हैं ना कि जो रोबोटिक आपका जो सर्जरी होगी वो कैसे होगी। उसमें बेशक दिखाते हैं, तो एक्चुअली आप ये कह सकते हो कि वैसा ही होगा, और वैसा ही एक्चुअली होता है कि हम किसी भी पेशेंट को या फिर किसी भी कोई भी डॉक्टर्स वगैरह जो भी रहेंगे वो इजीली हम VFX का यूज करके बता सकते हैं। So I think there is lot of scope, right, in this VFX. एक I'm just remembering one scenario. जब अभी few weeks back I was in Singapore, और वहाँ पे जो यूनिवर्सल स्टूडियो है एंड वहाँ पे बहुत सारी राइड्स हैं. वन ऑफ द राइड्स वाज ये ट्रांसफॉर्मर वाली. तो उसमें ऐसा था कि जब मैं बैठा उसमें एंड देन लाइक वो राइड पे थी, बट एट द सेम टाइम यू फील दैट यू आर इनसाइड दैट ऑप्टिमस प्राइम and you are driving, right? So I think it is a mixture of VFX plus the real
मूवमेंट जो राइड में हम इधर ऊपर नीचे जाते हैं साइड में यू नो वर्ड्स ये सब, सो वहां पे भी VFX यूज होता ही है? आई थिंक यू कैन से दैट्स यस, शायद हो सकता है VFX हो सकता है, मैंने अभी तो कोई ऐसी राइड करी नहीं, लेकिन हाँ क्योंकि अगर उन्होंने वो जो सीन जो भी आपने देखे हैं, अगर वो रियल वैसा आपको फील करा रहे होंगे कि हाँ आपने देखा कि डायनासोर्स उसमें दिख रहे हैं, तो हो सकता है कि उन्होंने शूट किया हो। क्या होता है कि जैसा आपको मूवीज जैसे दिखते हैं ना कि 3D 4D 6D 5D 7D, राइट, तो ये एक तरह की स्टेजेस हैं। जैसे 3D मूवीज में आप देखते थे कि आपने बस स्पेक्स पहने और आपको फील होता था कि हाँ ये आपको डेप्थ नजर आ रहा है। 4D में फील होता है कि ये आप अगर वहां पे आप कोई सीन है जिसमें कैरेक्टर्स जो है कार में बैठे हैं और वो फॉरेस्ट के अंदर जा रहे हैं, जंप हो रहे हैं, तो आपकी चेयर्स हिलती थी। राइट। नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है कि 5D बोलते हैं वैसे तो, कि 5D है 6D है, अलग अलग स्टेजेस हैं। कि मान लो कि अगर आप किसी जगह हो जहाँ पे गरम मतलब आग लगी है, हाँ आग लगी है, फिर पानी के आसपास थोड़ा सा लो हीटर जैसा चला देंगे, कोई माउंटेन में चले गए, बट दैट इज नॉट VFX। एरिया है, हाँ यस, तो वो क्या है, वो चीज जो है बस मूवी का तो VFX अलग है, वो एक लाइव VFX टाइप, ये एक लाइव इफेक्ट्स है। राइट राइट। तो वो कंबाइनिंग जो भी आपने एक्सपीरियंस किया था वो वही वो कंबाइनिंग ही था। ओके I had so many questions, काफी सारी curiosity you satisfied so thank you Hitesh, and anything that you want to share to audience which I might have missed during the conversation, आपको कुछ शेयर करना है तो? I just want to say कि जो भी कोई VFX में अगर इंटरेस्टेड है, जो करना चाहता है, तो सबसे पहले तो ये होता है कि मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग क्या है, क्रिएटिविटी। तो जो भी उनकी क्रिएटिविटी है, अगर कोई भी VFX आर्टिस्ट बनना चाहता है, वो अपनी क्रिएटिविटी में एक्सप्लोर करे ना। अभी वो इसी तरह के मूवीज पे रिसर्च करे, रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो होती है वो करे, कि डिटेल्स में जाए, है ना। तो उन्होंने मूवी तो देख ली, VFX में इंटरेस्ट होगा कि हाँ इस मूवी में इतना अच्छा VFX हुआ है, बाहुबली में इतना अच्छा हुआ है, ब्रह्मास्त्र में ऐसा इफेक्ट्स हुआ है ना। तो वो सिर्फ उस मूवी से इंटरेस्टेड होके VFX में अगर आना चाहता है तो उसको अपनी क्रिएटिविटी बढ़ानी पड़ेगी। सेकेंड थिंग इज रिसर्च एंड डेवलपमेंट, डिटेल्स में उसको जाना होगा, और एनिमेशन का नॉलेज बहुत होना चाहिए उसमें, है ना। एनिमेशन का, लाइटिंग का, क्योंकि लाइटिंग आसपास कैसी, क्योंकि VFX में लाइटिंग भी बहुत मैटर करती है। कोई भी आपने VFX में जहाँ आपने सीन शूट किया है, उसकी लाइटिंग कैसी है, तो सेम लाइटिंग आप जो VFX में जो क्रिएट कर रहे हो, CG में जो कंप्यूटर ग्राफिक्स में जो आप यूज कर रहे हो, सेम उस पे भी वैसा ही लाइटिंग होनी चाहिए। राइट। और टाइम मैनेजमेंट उसका होना चाहिए प्रॉपर, उसको ये पता होना चाहिए कि हाँ, क्योंकि क्या है कि उसमें डिफरेंट वो सिनेरियोस रहते हैं, उसमें डिपार्टमेंट्स रहते हैं, तो अभी उसको पता होना चाहिए कि हाँ कि मुझको इसमें ये इतने टाइम में करना है, अगर कोई स्किल डेवलप करना है। राइट। और अपने स्किल्स को बढ़ाने की ट्राई करना चाहिए कि हाँ मुझको अभी मैंने ये चीज ये डिपार्टमेंट में मैंने सीख लिया है, मुझे अभी इनका भी एक टेक्निक होना चाहिए। मतलब जैसे VFX में अलग अलग डिपार्टमेंट्स रहते हैं, उसको भी ये होना चाहिए, अंदर से वो कुछ होना, ईगरनेस होनी चाहिए कि हाँ मुझे ये चीज। राइट। डिफरेंट सॉफ्टवेयर का नॉलेज अच्छा होना चाहिए, सॉफ्टवेयर नॉलेज। करेक्ट। हाँ, तो ये हाँ उसमें होना, मतलब उसके अंदर कोई भी जो भी VFX आर्टिस्ट है उसमें ये उसको अपना हैबिट बनाना पड़ेगा। और जो भी नई टेक्नोलॉजीज आ रही हैं अपना VFX से रिलेटेड, जो भी न्यू सॉफ्टवेयर आ रहे हैं, न्यू टूल्स आ रहे हैं, उससे भी उसको अपडेटेड रहना चाहिए। राइट। Okay, thank you Hitesh, thank you for all this information, and thank you so much for explaining in detail how exactly these two great movies are were developed. And yes, so thank you for sharing these things, and
I really enjoyed. काफी सारी चीजें अभी पता चल गई. So probably when I see the next movies, तो थोड़ा पता चल जाएगा कि भाई ये सब चीजें शायद not that real that we see. And तो ऐसे होता कि जब भी हम पहले मूवीज को देखता था ना विजिबल, तो इतना हम सोचते ही नहीं थे, तो बस हाँ बड़ा अच्छा है. लेकिन when I come to this field, तो मेरा विजन ही चेंज हो गया. मैंने कहा हाँ ये ऐसा सीन हुआ होगा, या फिर ये सीन कैसे हुआ होगा. हाँ, of course you can visualize कि भाई यहाँ पे ये ऐसे हुआ होगा. Right, correct. Okay, thank you Hitesh, thank you for your time. And अगर कुछ आप नया फिर if you come up with some new software tools, any technology, we'll have another conversation on that. Yes, thank you Hitesh, thank you for your time. Bye. Yeah, bye.